So our next question is we have to integrate e raised to power 2x plus 3. So first of all, you can see that derivative of 2x plus 3 will be equal to dx. Means put 2x plus 3 is equal to t. Then differentiate with respect to x. The derivative of 2x is 2. And derivative of t with respect to x, that is dt by dx. So can I say that by cross multiplying, we can say that dx will be equal to dt by 2. Now, by substituting all these value in this integration, but we will have 2x plus 3 is equal to t, that is e raised to power t. Dx, value of dx is dt by 2, dt by 2, that is 1 by 2. And we know that 1 by 2 integration of e raised to power t is e raised to power t plus c. E raised to power t plus c. Okay. So value of t, that is 2x plus 3. So final answer will be half e raised to power 2x plus 3 plus c. So this is the answer of this question. If it's clear, then thumbs up. If you have any doubt, then wave your hand. Okay. Let's move to the next question. The next question is question number 17. We have to integrate x upon e raised to power x square dx. बताओ भाई क्या करेंगे इसमें, क्या लगता है आपको? x को t लेंगे. अगर x को t लोगे तो आपको dx मिलेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें तो कोई ज्यादा सोचने वाली नीड नहीं है आपको. देखो x की पावर 2 है और ये x की पावर 1 है. तो अगर आपको पता, जब हम डेरिवेटिव्स करते हैं पावर कम होती है, तो अगर मैं x की पावर 2 का डेरिवेटिव करूंगा तो x की पावर 1 मिल जाएगा मुझे. व्हाट आई मीन टू से दैट पुट x square is equal to t, then differentiate with respect to x. ये हो जाएगा आपका 2x और t with respect to x हो जाएगा dt by dx. So we have to find the value of x dx. So can I say that x dx will be equal to dt by 2? Yes. That means it can be written as 1 by 2. In place of x dx, we will write dt by 2. देखो ये जो dt by 2 है, ये हो गया आपका dt by 2, ये हो गया 1 by 2. और e raised to power x square की जगह आपने क्या लिखा, ये क्लियर है आपको? ठीक है. Then it can be written as half e raised to power minus t dt. Now its integration will be e raised to power minus t, और माइनस t का कोफिशिएंट -1 upon -1 plus c. So further it can be written as देखो माइनस है तो ये हो जाएगा आपका -1 by 2, -1/2 और e raised to power minus t means minus x square plus c. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी -1/2. e raised to power minus x square को अगर आप डिनोमिनेटर में प्लेस करते हो तो इट विल बी e raised to power x square plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? Okay, let's move to the next question. Next question is question number 18. We have to find the integration of e raised to power tan inverse x upon 1 plus x square dx. First of all आप देखो, अगर मैं tan inverse x को t पुट करता हूँ, मीन्स पुट tan inverse x इक्वल टू t, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएट with respect to x. That is 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. Now derivative of t with respect to x, that is dt by dx.
Can I say that we have got the value of dx upon 1 plus x square? You can see that by cross multiply it will be dx upon 1 plus x square and it is equal to dt. तो ये जो पोर्शन है आपका ये हो गया dt और tan इनवर्स x को आपने ले लिया t, तो it will be equal to e raised to power t dt. ठीक है, और e raised to power t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to power t plus c and it will be equal to e raised to power tan inverse x plus c, right? E raised to power tan inverse x plus c. Is it clear? Okay, let's move to the next question. Next question is question number 19, important one too. देखो ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरह का क्वेश्चन, नॉट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट ऐसा एक क्वेश्चन आप 11th क्लास से कर रहे हो. व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रिक यूज होगी और इस तरह की क्वेश्चन की जो ट्रिक आप पहले सीख चुके हो. मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, देखो 11th क्लास से हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में होता है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, राइट? तो tan a माइनस बी में कन्वर्ट हो जाता है. ये क्लियर है आपको? ये बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं, 12th में भी 11th क्लास से हमने करना शुरू किया था. अभी cos x से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, ये बन क्या जाता है, tan a माइनस बी, राइट? अब इसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में इश्यू ये है कि अगर मैं किसी को भी सब्स्टिट्यूशन में लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा a रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर 2x dx इक्वल टू dt. अब दिक्कत जो मेरे लिए कर रहा है वो ये 1 कर रहा है, तो दिक्कत मेरे लिए कर रहा है ये 1 कर रहा है कि a रेज़ टू पावर 2x dx नहीं है, मेरे पास a रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 है. तो इस वजह से मैं डायरेक्टली इस पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकता, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अब वो सिंप्लीफाई देखो कैसे करोगे, जो आपके सामने दिक्कत आ रही है वो किसको लेके आ रही है, 1 को लेके. व्हाट वी विल डू हियर, देखो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, e रेज़ टू पावर 2x को e रेज़ टू पावर x 2 माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x 2 प्लस 1. बोलो ये ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या मैं e रेज़ टू पावर 2x को ऐसे लिख सकता हूँ? आपको, आपने रूल्स पढ़ा हुआ है, a रेज़ टू पावर mn क्या होता है, a रेज़ टू पावर mn. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x और 2 को, तो ये e रेज़ टू पावर 2x होगा और ये भी e रेज़ टू पावर 2x होगा, राइट? देन नाउ व्हाट वी कैन डू, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by e raised to power x, dividing numerator and denominator by e raised to power x. जब आप इसको डिवाइड करोगे what you will have, it will be e raised to power x raised to power 2 divided by e raised to power x minus 1 upon e raised to power x upon again e raised to power x raised to power 2 divided by e raised to power x plus 1 upon e raised to power x dx. जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, e raised to power x स्क्वायर कैंसिल, e raised to power x और ये स्क्वायर कैंसिल, राइट? So finally what we will have, it will be equal to e raised to power x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x. ये जो e रेज़ टू पावर x अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ तो इट विल बी e रेज़ टू पावर माइनस x. देन e रेज़ टू पावर x प्लस अगेन e रेज़ टू पावर माइनस x dx. अब आप चाहे न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूशन में रखो या डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर. पर जब भी ऐसा केस आता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे का डेरिवेटिव होता है, तो आइडियली हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूशन में रखते हैं, राइट? तो आपके पास जो फंक्शन अब आया वो क्या हो गया, e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x एंड देन e रेज़ टू पावर x
plus e raised to power minus x, e raised to power x plus e raised to power minus x dx। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे का डेरिवेटिव है, तो व्हाट वी विल डू, हम डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूशन में रखेंगे। पुट e raised to power x plus e raised to power minus x इक्वल टू t। तो ये क्या हो जाएगा, e raised to power x, e raised to माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये होगा माइनस, क्योंकि माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, और e raised to power माइनस एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, t विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx। नाउ इट कैन बी रिटन एज e raised to power x माइनस। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम डिनोमिनेटर को t में रखते हैं, बिकॉज अब देखो डायरेक्टली आपको ये क्या हो गया, e raised to power x माइनस e raised to power माइनस x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई dx, dx आपका न्यूमरेटर में है इक्वल टू dt। कैन आई से दैट ये जो आपकी फॉर्मेट विल बी इक्वल टू, देखो ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये तो पूरा आपका dt हो गया, ये जो पूरा पोर्शन है आपका ये किसके इक्वल हो गया, dt के। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका dt, और e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x, ये हो गया आपका t, ये क्या हो गया आपका t। अब dt बाई टी क्या होता है आपका log t प्लस c, राइट। और t की वैल्यू क्या होगी log t, आपका क्या था e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x प्लस c। इज इट क्लियर? इसमें जो मेन पॉइंट है जो आपको अपने माइंड पे रखना है वो ये है कि डायरेक्टली आप इस पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो दिक्कत आ रही है वो इस 1 की वजह से आ रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही e रेज़ टू पावर x से डिवाइड कर दिया, जिससे जो 1 है हमारा वो भी एक्सपोनेंशियल में ही कन्वर्ट हो गया। अभी एक ऐसी फॉर्म है दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव है, पर जब भी ऐसा कोई केस आता है तो डिनोमिनेटर को आप सब्स्टिट्यूशन में रखोगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x upon e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x dx। अब बताओ कैसे करोगे इसको, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? e raised to the power 2x से डिवाइड। क्यों डिवाइड करोगे, क्या इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन में दिक्कत थी वो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ भी आ रही है, बताओ। नहीं, पर इसमें तो भैया सीधा भी हो सकता है क्योंकि डेरिवेटिव है दोनों। हाँ तो फिर सीधा ही बोलो ना, हो क्या सकता, होगा ही सीधा ही। जब इसमें कोई इशू है ही नहीं, डायरेक्टली एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन है तो डायरेक्टली करेंगे। आप सीधा बोलो कि इसमें डायरेक्टली होगा, क्योंकि इसमें तो वहां प्रॉब्लम थी आपकी 1 की वजह से। जो प्रीवियस क्वेश्चन था यहाँ पर जो इशू था इस 1 की वजह से क्रिएट हो रहा था कि मैं इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकता, तो मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ा। यहाँ वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ सिंप्लीफाई करके आप इसी फॉर्म में तो लेके आए थे क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखो अगर डायरेक्टली यहाँ पर पावर में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस, तो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन किसका लगाओगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का? डिनोमिनेटर। क्या करोगे आप, पुट e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x equal to t, then differentiate with respect to x। ये हो जाएगा e raised to power 2x, तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2 प्लस e raised to power minus 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा -2, और t विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt by dx। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, e raised to power 2x प्लस माइनस माइनस e रेस टू पावर -2x, और ये हो गया आपका dt बाय dx। देन e रेस टू पावर 2x माइनस e रेस टू पावर -2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा dx, और इक्वल टू में क्या आएगा आपका dt बाय। अब देखो जो आपका ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन था e रेस टू पावर 2x माइनस e रेस टू पावर -2x dx, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मीन्स ये इसकी वैल्यू जो है आपकी वो क्या होगी dt बाय 2। तो dt बाय 2, तो बाय 2 तो हो गया 1/2। इन न्यूमरेटर वी विल हैव dt, इन डिनोमिनेटर दैट इज t। तो फाइनल आंसर विल बी हाफ log t प्लस c।
So it will be half log. In place of t, what we will write? E raised to power 2x plus e raised to power minus 2x plus c. And this is the final answer of this question. Is it clear? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx. देखो डायरेक्टली हम tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट हमें एक रिलेशन पता है या एक आइडेंटिटी पता है दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब ये जो 2x माइनस 3 है ये आपका थीटा है. By using this equation, what we can do now, it can be written as integration of tan square. ये जो tan square theta है उसको कैसे लिखोगे? sec square theta, that is sec square 2x minus 3. ये हो गया sec square theta minus 1 और ये हो गया आपका dx, right? ये इस तरह से आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया. Now what we can do, I can separate this function, right? Can be written as you can write it as sec square 2x minus 3 dx minus integration of dx. 1 into dx को मैंने लिखा dx, अब इसको चाहो तो 1 into dx भी लिख सकते हो, और ये हो गया sec square थीटा, राइट? अब ऐसा क्वेश्चन अभी आपने किया था कि 2x minus 3 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा? dx. तो यहाँ पर तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो दैट पुट 2x minus 3 is equal to t. What we will have? Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. It will be 2x हो जाएगा 2 constant 0 और ये हो जाएगा dt by dx. तो फाइनली जो dx होगा आपका it will be equal to dt by 2. So it can be written as now sec square 2x minus 3, that is sec square t. Value of dx is dt by 2, that is 1 by 2 or dt. And integration of dx. इंटीग्रेशन आप चाहो तो इसको यहाँ भी कर सकते थे, बट फिर क्या होता है आपको प्लस c1 c2 इस तरह से करना पड़ता है. तो जब भी इंटीग्रेशन करो तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि साथ में वो जो भी इंटीग्रेशन हो सारा एक साथ करो, ठीक है? तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? दैट इज tan t, राइट? जब sec स्क्वायर t का आप इंटीग्रेशन करोगे it will be what? tan t. तो it will be half tan t. और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x. dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? x प्लस, ठीक है? ये हो जाएगा हाफ tan. इन प्लेस ऑफ t what we will write? 2x minus 3 minus x plus c. So this is the final solution of this question. Is it clear? देखो ये जो क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. आपको पता sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज tan थीटा. तो दैट इज tan 7 minus 4x और माइनस 4x का कोफिशिएंट दैट इज 4 minus 4 प्लस फर्दर. तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -1 by 4 tan 7 minus 4x प्लस. ये हो गया मेथड 1. क्या मैं इसको अभी तक आपने दो ही मेथड सीखे. फर्स्ट मेथड तो आपने डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. दूसरा मेथड जो अभी आपका चल रहा है सब्स्टिट्यूशन, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ. कैसे? पुट 7 minus 4x equal to t, then differentiate with respect to x. तो -4x हो जाएगा -4 equal to dt by dx. It means dx will be equal to minus dt by 4. जब ये सारी वैल्यू आप इस इंटीग्रेशन में पुट करोगे तो देखो -1 by 4 आपका आप बाहर लिखोगे sec स्क्वायर 7 minus 4x हो गया आपका t
और dx हो गया आपका dt। तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/4 tan t प्लस ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -1/4 tan t। t की वैल्यू क्या होगी आपकी 7 - 4 प्लस। अब आपके ऊपर है आप इसको किस मेथड से करना चाहते हो, ये दोनों ही मेथड से होगा। इज इट क्लियर? भैया 1 मिनट। या यू कैन टेक योर टाइम, आराम से देखो, जब पूरा क्लियर होगा तभी थम्स अप करना। इफ एनी डाउट देन रीड योर हैंड बेटी, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। Next question is question number 23. We have to integrate sin inverse x upon root 1 minus x square dx. अब देखो देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा then I will have the remaining value. Means put sin inverse x equal to t. Then differentiate with respect to x. Sin inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon root 1 minus x square, और t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dt by dx. Now we can find the value of this portion, means dx by root 1 minus x square is equal to dt. Is it clear? ठीक है, जब आप ये सारी वैल्यूज इंटीग्रेशन में पुट करोगे, व्हाट वी विल हैव, साइन इनवर्स x हो गया आपका t एंड द रेस्ट ऑफ द फंक्शन इज dt। तो बहुत सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, that is 1/2 t square, that is sin inverse x raised to power 2 plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? Next question is question number 24. We have to integrate 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx. अब देखो इसमें फर्दर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली तो मैं इसको अगर देखूं तो मैं इसका सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं इसको भी लेता हूँ तो ये इसका नहीं होगा डेरिवेटिव और ये इसका नहीं होगा। पर पहले अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ 4 और 6 को में से मैं 2 कॉमन या 4 और 6 में से मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूँ, राइट? तो थोड़ा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 cos x माइनस 3 sin x, और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ इट विल बी 3 cos x प्लस 2 sin x। अब आप देखो डिनोमिनेटर जो है आपका, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो आई विल गेट दिस न्यूमरेटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, ये जो 2 है you can write it as 1/2, then in numerator 2 cos x minus 3 sin x upon 3 cos x plus 2 sin x, ये हो गया आपका dx। Now what we can do here, first of all we will apply the substitution. Put p cos x plus 2 sin x equal to t. p constant है as it is होगा, differentiate with respect to x। p cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x। 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, और ये हो गया आपका dt बाय। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, विद इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x विद इन ब्रैकेट dx इक्वल टू dt। तो जो ये पूरा आपका जो न्यूमरेटर था ये हो गया आपका dt। इट मीन जो आपका इंटीग्रेशन था दैट इज 1/2
2 cos x minus 3 sin x upon t cos x plus 2 sin x dx. Now it can be written as it will be equal to 1 by 2. This numerator value is now equal to dt and denominator is equal to t, right? So it will be equal to half log t plus c. So half log. In place of t, we will put t cos x plus 2 sin x plus c. This is the final answer of this question. आप लोग एक बार इस क्वेश्चन का एनालिसिस देख लो. If it's clear, then let me know. If you have any doubt, then let me know. Now next question is question number 25. We have to integrate 1 upon cos square within bracket 1 minus 10x whole square dx. Okay. अब देखो सबसे पहले आप ये देखो 1 by cos square x. Can I say that it will be equal to sec square x? 1 by cos square x को हम क्या लिख सकते हैं? sec square x upon 1. ये जो पोर्शन था 1 by cos square x ये हो गया आपका sec square x upon 1 minus 10x whole square and then dx. Now we can easily apply the substitution because we know that 10x का जो derivative होता है वो sec square x होता है. Now what we will do, put 1 minus 10x is equal to t. Differentiate with respect to x. Constant का derivative 0 होगा minus 10x का derivative हो गया sec square x. तो t का derivative with respect to x हो गया dt by dx. तो sec square dx cross multiply, it will be sec square x dx. It will be equal to minus dt. By substituting all these values, what we will have now? Minus sec square dx is equal to dt. 1 minus 10x, that is t square. Now it can be written as p raised to power minus 2 dt. P raised to power minus 2 dt. Okay, then now minus t raised to power n, that is t raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. It is minus t raised to power minus 1 minus 2 plus 1 minus 1 plus c. Minus minus क्या हो जाएगा plus. So t raised to power minus 1 can be written as 1 by t plus c. Now value of t is 1 minus 10x. Can I say that the final answer will be 1 upon 1 minus 10x plus c? This is the final answer of this question. Okay.